first of all, I would like to congratulate you because you have been the key people who have taken the first step towards learning and making a difference in your life. So how many of you think that COVID-19 lockdown is a reason of stress? I think most of us, right? But I Yes, think ma'am. differently. I I think it's good. Yeah, so if we follow the guidelines, stay home, wash our hands, keep hygiene, we remain safe. So moreover, this is a period which is an ocean of opportunity, and our mind is like a fishing net to grab them only if we believe in ourselves. So let me quote my words with the help of an example. एक बार देवराज इंद्र किसी बात से नाराज हो गए गांव वालों से और उन्होंने श्राप दे दिया कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी उस गांव में। सारे में उथल पुथल मच गई कि बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी। वो गए जाकर के इंद्र देवता से माफी मांगने लगे, पर इंद्र देवता ने कहा कि जब शिव जी डमरू बजाएंगे तभी जो है आपके गांव में बारिश होगी। वो सब लोग वापस आ गए और इंद्र देवता तुरंत शिव जी के पास गए और शिव जी से जाके उन्होंने कहा, प्रभु 12 साल तक आप बजाइएगा नहीं डमरू। शिव जी ने उनकी बात स्वीकार कर ली। अब 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। पर एक किसान जो है वो हर साल अपना खेत जोतता था और बीज बोता था। सारे उसकी हंसी बनाने लग गए कि क्यों तुम ऐसा कर रहे हो जब तुम्हें पता है 12 साल तक जो है वो बारिश ही नहीं होनी। उसने कहा 12 साल तक अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे कैसे याद रहेगा कि कैसे अपना खेत जो है वो अच्छे से फसल उसमें लगा सकता हूँ। पार्वती जी ने ये बात सुनी और उन्होंने शिव जी को बोला, प्रभु अगर 12 साल तक आपने डमरू नहीं बजाया तो क्या आप भी नहीं भूल जाएंगे डमरू बजाना। ये बात सुन के शिव जी ने तुरंत अपना डमरू उठाया और बजाने लगे। अब क्या हुआ, डमरू बजा तो बारिश तो होनी थी और उससे क्या हुआ, बाकी सारे खेत बंजर थे, सिर्फ उस किसान का खेत जो है हरा भरा फसल से लहरा रहा था। ये बताने का मेरा एक मकसद था। This incident has helped us to understand that we don't know during these unprecedented times what will happen next, but we should prepare ourselves for the next level that will bring only profits in our career and our learning. From past 1 month, we have started respecting the work which we always looked down upon, like security guards, housekeeping staff, police, doctors, nurses, delivery boys, and many others. But it is because of them that today we are safe at our place. So today being May 1, the Labor Day, let us take out a moment and thank these people through our FB account, through our Instagram, through Twitter handle, or whichever social media you are in, so that these people stay energized and do their daily tasks. Now, let me share my screen to know more about what we do at Quicker Academy. That's live, ma'am. Yeah. Okay, so what is stress? For some students, I think पढ़ाई ही stress है। कुछ के लिए हॉस्टल का खाना stress होगा, कुछ के लिए मार्क्स का stress होगा, कोई लोग तो प्लेसमेंट के लिए भी stress ले रहे होंगे और तो और
इंग्लिश बोलने का भी स्ट्रेस होगा. Now let me rephrase what is stress. Stress is the gap between the reality and what is our expectation. When the gap is bigger, we know that stress is more. अब आप ये देख रहे हैं जो सामने आपके स्क्रीन, आई थिंक सबको दिख रही होगी मेरी. तो इसमें एक पिक्चर दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है वर्किंग हार्ड इज नॉट द गेम चेंजर इफ वी डू इट द रॉन्ग वे, बट द गेम चेंजर इज इफ वी डू इट इन द राइट डायरेक्शन. सेम हमारे करियर के लिए है. इफ यू वांट टू गो in best heights of your career, you have to explore, you have to invest time in knowing it. You want to understand what connects you, what is your capability, and where you want to go. Listen to your heart and explore your inner potentials. We are there for you because we provide the right direction of your career. And if you want to pursue higher studies, or if you are looking for career prospects, we are right here for you. So do enroll with us if you find the sessions interesting. Next is the changing times. See, the biggest change that has happened in a student's life is the classroom learning has been replaced by online learning. This is one of the most changing times we are seeing right now. But changing times are always there. How? When we hopped from one class to the other, we bought new set of books and we upgraded ourselves in our learning, in our knowledge. Similarly, if we talk about the technology, we are a generation who has seen a phone जिसमें हम केवल नंबर डायल कर सकते थे, to a phone which can do anything and everything. These smartphones are our best friends. Utilize app to times and make the best use of it. मैंने एक रिसेंटली एक मैसेज देखा था व्हाट्सएप पे. उसमें लिखा था मोबाइल फोन कह रहा है you were the one who threw me out of the school or college, but right now I am the one who's controlling all your activities. So again, in Quicker Academy, we are here to help you learn at the comfort of your home through online classes. Next slide, it is stress relieving techniques. So let us know about some of the techniques that can help relieve stress from your current times. Not only current times, but it is beneficial for your future as well. So let me start with the belief system. Belief system में जब हम कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में थे, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जिसने भगवान के सामने जाके रिश्वत नहीं ऑफर करी होगी. उसने ये नहीं कहा होगा कि भगवान मेरे को पास करा देना, मुझे पासिंग नंबर दिला देना और मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी. बिलीव इन योरसेल्फ. जितना तुमने पढ़ा है उतने ही मार्क्स आएंगे. जो आपने बोया है वही आप so will you reap. So believe in yourself, believe in your potentials and start working hard, because you are meant to do something greater than your capacities. Next is mindfulness. हर साल हम सोचते हैं कि इस साल मैं शुरू से पढ़ाई करूंगा या करूंगी. क्या हम करते हैं? नहीं, हम लास्ट मोमेंट पे ही करते हैं. माइंडफुलनेस सेज स्टे इन योर प्रेजेंट. आप अपनी करंट सिचुएशन को अगर हैंडल करेंगे, अगर आप शुरू से ही पढ़ाई करेंगे, शुरू से ही अगर आपको कहीं पे हेल्प चाहिए तो आप उस हेल्प को यूटिलाइज करेंगे, तो डेफिनेटली you will not be that much stressed during your exams.
Next is stress buster moments. Stress buster moments are those moments which we always loved doing as a child, as a student, जैसे playing musical instruments, singing, dancing, or painting, or maybe any other activities. Right now हम इस समय हम घर में हैं, तो जो हमारी एक्टिविटीज हम घर में बैठ के कर सकते हैं, why not focus on them? इससे ब्रेन को जो है बहुत सारी टेंशन्स रिलीव करने का मौका मिलेगा. नेक्स्ट इज द स्टेट चेंज. स्टेट चेंज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. जब हमने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, जब भी बोमन ईरानी स्ट्रेस्ड होते थे, he used to laugh out loud. Why? Because he was changing his state. उनका माइंड जो है वो शेड कर रहा था ऑल द स्ट्रेस, और उसके बाद फिर he felt happier. Same way, there are many techniques in state change, like clapping your hands, maybe raising your arms, maybe rolling your shoulders, and many other techniques. Next is power of gratitude. Power of gratitude बहुत important है, because आज के टाइम में हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि we are free from all the diseases, we are free from all the problems that those people are facing, जो इस समय currently work कर रहे हैं day and day night. आपके टीचर्स वो बहुत बड़ा पात्र है थैंकफुलनेस के लिए, ऑल बिकॉज क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, दे आर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आपको वो आपके फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. थैंक्स टू योर पेरेंट्स, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आज आप यहाँ पे बैठ करके ये सेशन सुन रहे हैं. थैंक्स टू ऑल दोज पीपल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, बीइंग May 1 द लेबर डे, so we should thank those people also, and anyone who has made a slightest difference in your life. Next है स्वस्थ रहो मस्त रहो. What does that mean? ये हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा बोलती हैं. क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि सब लोग जो है हेल्दी फूड खाएं, वर्कआउट प्रॉपर करें और अच्छे से सोएं. इससे क्या होगा? हेल्दी फूड खाने से we would definitely have proper immunity, जो आज की डेट में जरूरत है. Somebody is talking. I think somebody is not on mute. There's some problem. Okay, so स्वस्थ रहो मस्त रहो. We are talking about the right food habits. आप fruits and vegetables अपनी diet में include करिए. You will get good immunity, and good immunity leads to मतलब आप अपने सारे जो diseases वगैरह हैं, अभी आपने देखा है US में being the most powerful country, वहाँ क्या हाल हो रहा है because of COVID-19. But those people who have high immunity, वो बचे हुए हैं फिर भी. So let's prepare our body for a better immunity. Good sleep always gives your mind good rest. It prepares your mind to do next level things. So sleep adequately for around 6 to 8 hours. Another very important aspect is the workout or the physical exercises. अगर आप 30 minutes का physical exercise करेंगे daily, तो definitely you will have a happy hormone released from your body, जिससे आपका mind, आपकी body will prepare itself to do the next level work. So these are some of the techniques that help to relieve stress. We have many more to tell you, to share, but right now I am telling about these many. And any questions I would like to take up now?
Okay, great. We'll have more questions in the later part of the Guys, आपके session पास कोई also. क्वेश्चंस हो अबाउट दिस तो आप पूछ सकते हैं. वन थिंग मोर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा. जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 चल रहा है और इस टाइम पे कोई बंदा घर से निकलना नहीं चाहता. आप लोग शायद स्ट्रेस में होंगे कि व्हाट अबाउट आवर कैरियर. तो उसके बारे में बिल्कुल सोचो, सोचने लायक चीज़ है. और हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग बेस्ट से बेस्ट कर पाएँ. हमारे पास क्विकर एकेडमी, क्विकर एचआर ग्रुप और यूनाइटेड कॉलेज का बहुत पुराना टाइप है. तो हमारे पास आज भी आप लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम है. तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो बंदा अपने करियर के बारे में आगे सोचना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो वो अपने कॉलेज में अपने कॉलेज के सुपीरियर्स को बता सकता है, अपना नाम दे सकता है, ताकि हम उसके लायक उसकी जॉब दे सकें, वर्क फ्रॉम होम करवा सकें उससे हम लोग. क्लियर. और इसके अलावा आपको कुछ भी कैरियर के बारे में, किसी भी अपने स्ट्रेस लेवल के बारे में कोई क्वेरी करनी है, तो डॉक्टर मधु इज देयर. शी इज द डायरेक्टर ऑफ मैनी कॉलेजेस एंड ऑल. तो वो भी आपके आंसर्स करेंगे. और श्रुति मैम भी अभी आपके साथ थी, वो भी आपको आंसर्स करेंगी. तो काइंडली अनम्यूट योर फोन वन बाय वन और आस्क द क्वेश्चंस. पता नहीं मुझे. हेलो. पता नहीं. Sir, if we don't have the questions right now, maybe later in the session, we can again put up the call for question and answer. Okay, Shruti ma'am, continue. Okay, so one of the most important skills that we should possess in today's time are the soft skills, communication skills. These basically help you to build trust and it creates better relationship. So I would like to hand over to Madhu ma'am. She is going to tell you about the soft skills Okay, further. Madhu ma'am, And thank you for listening to me patiently. Hello. Hello. Are you there? Hello. Yes, I am here. I am listening. Thank Yeah, you, Madhu ma'am, Shruti. welcome. Please Hello, come hello, and everyone. answer the soft skills. Yes, definitely. Yes, hello, everyone. This is Dr. Madhu Yogi, and I feel proud to be a part of your organization. I am just connected to the students. जैसा कि श्रुति मैम ने बताया कि हम आज स्ट्रेस मैनेजमेंट पर मैम ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है कि हाउ टू रिलीज द स्ट्रेस. ये होना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ है. स्ट्रेस नहीं है तो हम आगे ग्रोथ नहीं कर सकते. मैं तो ये भी मानती हूँ. तो somehow it must be there in our life. इसके अलावा जो मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगी अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स. तो मुझे लगता है स्किल्स के बारे में तो सबने सुना है शायद. क्या आप लोग अनम्यूट करेंगे अपने फ़ोन को फॉर 1 मिनट. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स राइट नाउ. कि प्लीज अगर स्किल्स के बारे में सुना है तो बताएं कि स्किल्स होती क्या है. एनीवन free to speak. My voice is not audible. Why is it so? Madhu ma'am, if you can use headphone, please, because your voice is not pretty audible to us. I am using. Hello. I am using. Am I audible right now? Yeah, you're audible. Now it's perfectly fit. Thank you so much. Yes. Okay. Thank you. So, am I audible to all? Yeah, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. ओके. तो आज हम बात कर रहे हैं स्किल्स पे, स्पेशली सॉफ्ट स्किल्स को लेकर के. तो मैं मेरा सबसे पहले स्टार्ट ही होगा. हैव यू हर्ड अबाउट द स्किल्स? स्किल्स होते क्या हैं? एनीबडी इज देयर टू टेल मी? कोई भी. या गाइस आप अनम्यूट करके आंसर. नो वन. ओके. कोई नहीं. सॉफ्ट स्किल्स का सुना है? हेलो. Good morning, ma'am. This Good side morning. Shraddha from United Institute of Management, Greater Noida. So Okay. basically is that ki basically the experience. Skill means experience. Basically to ability to do something or the experience. Okay. So Good. basically it is skills.
Ma'am, Okay. hello, ma'am. Hello. Ma'am, my name is Rashi Singh. I'm from the United Mhm. Institute of Management. I'm pursuing my Okay. MBA, and according to me, skill is the ability to learn something and to perform very well in particular areas. Good. Fine. Anybody else? Good morning, ma'am. Myself, Good morning. Himanshu. Yeah, Okay. ma'am. Skills are the expertise or talent that is These are needed to basically perform something our which we work. use to enhance our personality. Okay. Good morning, Fine. ma'am. My name. Okay. Yes. We can say, ma'am, skills are expertisement in a particular field, using which we can earn money. Okay. Good. Good morning, ma'am. Good morning. I'm Nishi Sharma from United Institute. For my opinion, I like an skill is a type of a work or an activity which matlab acquire your knowledge, your skill, your training. Okay. Good. 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 Everybody. Well explained. Right now, I would like to just tell. Please mute your phones, all of you, right now. I would give you the chance again. Mute, please. Would you? Yes. Skills हमारे जो होते हैं, simply they are the attributes. Skills are the attributes, qualities, elements, aspects, traits, characteristics of a human being. Simply, they are the skills. And skills are divided into two parts. As we all know, hard skills and soft skills. ये हम सबने सुना है, hard skills and soft skills. मैं बताना चाहूंगी कि what is the difference between hard skills are the skills. Hard skills वो skills होते हैं, the skills which are teachable and measurable. वो skills जो कि teachable and measurable होते हैं, like we have studied from our school time to college. जो भी हमने subjects पढ़े हैं, like हमने maths पढ़ा है, English पढ़ा है और computer पढ़ा है, ये सारी programming, everything which is measurable, okay, is known as the hard skills. But apart from this, इसके अलावा on the contrary, हमारा होता है soft skills, which are not taught in the colleges. Sorry to say, बिल्कुल नहीं होता. Colleges में जिसकी कोई पढ़ाई नहीं होती स्कूल से लेकर, they are simply the attributes. We can say soft skills is a cluster of attributes or the qualities of human behavior. जो हमारे attributes हैं, जो हमारी qualities हैं, human behavior, they can be kept in that category of soft skills. It includes common sense also. जो हमारे soft skills हैं, इसमें common sense भी बहुत ज़्यादा work करता है. अभी जैसा कि students, you won't believe कि soft skills plays a very important role to crack any interviews, or in our day-to-day life also. 80 to 85% soft skills work while you are going to crack any interview. Only 15%, केवल 15 से 20% जो है हमारा हार्ड स्किल्स ही वर्क करता है. रीजन बिहाइंड इट कि प्लीज म्यूट योर फोन. हाँ, केवल हमारा 15 से 20% है जो कि हार्ड स्किल्स वर्क करता है, जो कि हमने स्कूल से लेकर कॉलेज तक जो एजुकेशन ली है वही पार्ट प्ले करता है. बट रेस्ट ऑफ द यू विच इज गोइंग टू मेक यू 100% इज नोन एज द सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, हमारा लीडरशिप स्किल्स होते हैं, हमारा मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है जो कि एक टेक्निक है, मैनर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल होती है, एटिकेट्स होते हैं, टाइम मैनेजमेंट होता है, इवन हमारा बिहेवियर होता है, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी होता है उसमें, एडाप्टेबिलिटी, टीम वर्क मैनेजमेंट, ये सारी स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्लेक्सिबिलिटी, एडाप्टेबिलिटी, लीडरशिप, इंट्रापर्सनल स्किल्स, पीपल स्किल्स, and team work skills, stress management, decision making skills. Number of skills are over there which makes us all rounder. They can be kept in the category of soft skills, जिससे हम 100% अपना दे सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं
इन डे टू डेज लाइफ, आज के समय में अगर किसी की जरूरत है तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर बहुत ज्यादा जरूरत है सॉफ्ट स्किल्स की, जो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं एट द ग्लोबल लेवल। एंड यू नो स्टूडेंट्स, जब कभी भी मेरी एचआर से बात होती है, ये जो अच्छी अच्छी कंपनीज के एचआर आते हैं, एवरीबडी नोज कि एवरीबडी द स्टूडेंट हैज ऑलरेडी गॉट द डिग्री, आप लोग के पास वो एक पेपर है, सर्टिफिकेट है। तो इफ you think you are 90% or 98%, so you would be selected. No, sorry to say, it's very ये जो थॉट है वो शायद थोड़ा सा अलग हटके अगर एक्चुअली आज के सिनेरियो में देखा जाए। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हमको ऑलराउंडर होना, स्मार्टर होना, वेरी एक्टिव होना, इवन हमारी जो प्रेजेंटेशन है होना बहुत ज्यादा मैटर करती है। मेरी जब कभी भी एचआर से बात होती है जो प्लेसमेंट्स के लिए आता है इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज के, आई डू आस्क यू व्हाट दे से कि मैम हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, वी नो कि दे आर कैपेबल इनफ। बच्चे ने जिसने डिग्री ली हुई है, दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग कि उसने क्वालिफाई कर रखा है ये वाला एग्जाम और ही इज कैपेबल इनफ टू क्रैक द इंटरव्यू। बट दो चीजें कोई भी एचआर चाहता है वो ये होती है, एक तो आपका प्रेजेंटेशन, मीन्स यू मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी पर्सनालिटी, और दूसरा आपका होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि कोई भी कंपनी, वेदर यू आर गोइंग टू बिकम द एंटरप्रेन्योर और यू आर गोइंग टू बिकम द एम्प्लॉयर और यू आर गोइंग टू फाइट एनी हायर स्टडी एग्जामिनेशन, कोई एडवांस स्टडीज के लिए भी जाते हैं, तो ये दोनों पार्ट जो है आपका बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। लाइक कि आपका एकदम प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, योर पर्सनालिटी शुड स्पीक इटसेल्फ। आप नहीं बोलें उससे पहले ही आपका खुद का खड़ा होना ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, खुद का होना ही लोगों के बीच में बहुत कुछ बोल जाता है। दैट इज प्रेजेंटेशन, आपका अपना बॉडी का जो लैंग्वेज है। सेकेंड थिंग कि आपका एक हैप्पीनेस, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, टेकिंग द थिंग्स पॉजिटिवली, इट मेक्स यू वेरी वेरी और आपके वेरी वेरी पॉजिटिव, एंड आपके एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा हेल्दी करता है, आपकी सराउंडिंग्स को भी। तो जब कभी भी आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, यू मस्ट मेंटेन ऑल दीज टू क्वालिटीज आई थिंक, क्योंकि इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी, अभी एक जो इंटरव्यू के लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो आप में इंटरव्यू स्किल्स भी डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप सोचते हैं कि 3-4 क्वेश्चंस किए तो दे आर नॉट, यू कांट क्वालिफाई दैट, आप उस इंटरव्यू को इस तरह क्वालिफाई नहीं करते 3-4 क्वेश्चंस को रटे रटाया बोलना। इवन मैं तो इस चीज से बहुत ही हैरान होती हूँ स्टूडेंट्स को देखकर पर्सनली। सॉरी टू से स्टूडेंट्स, आई एम इन दिस फील्ड, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में मैं लास्ट 25 ईयर्स से हूँ और मेरा यही काम है। अभी मैंने सोचा कि ये मैं व्हाई डोंट आई गिव सच सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक आवर स्टूडेंट्स लाइक दैट ओनली, कि मेरे बच्चे, ये जो स्टूडेंट्स हैं, किसी भी लेवल पे जाके दे मस्ट क्रैक द एग्जाम, एनीथिंग लाइफ में कभी भी सक्सेस से पीछे ही नहीं हटे, हमेशा दे मस्ट ग्रो एट एवरी स्टेप। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस जॉब राइट नाउ। मैं आई थिंक इट्स माय पायस सर्विस टू द सोसाइटी। तो हाँ, मैं कह रही थी कि अगर आप इस तरह से इंटरव्यू स्किल्स में क्या होता है कि इवन सबसे पहला क्वेश्चन ही अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि से समथिंग अबाउट यू, एक्सप्लेन योरसेल्फ, तो इवन बहुत ही, मैं क्या कहूँ, ये चिंता का विषय है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हमें हमारे फ्रेंड्स का पता होता है, हमें हमारी कॉलोनी का पता होता है, पूरे देश का पता होता है, पूरे वर्ल्ड का पता होता है, बट वी डोंट नो व्हाट वी आर एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर लाइफ एंड व्हाट इज द एम ऑफ माय ओन लाइफ। जब हमें यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे मेरी जिंदगी से क्या चाहिए, तो व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी हैव टेकन दिस बर्थ। तो ये सबसे पहले जरूरी है कि दुनिया को जानने से पहले वी मस्ट नो आवरसेल्व्स कि हु एम आई एंड व्हाट आई वांट एंड व्हाई हैव आई टेकन बर्थ ऑन द अर्थ। मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरे ड्रीम क्या है, व्हाट आई हैव टू अचीव, मुझे अचीव क्या करना है लाइफ में फाइनली। तो दिस इज, तो यहीं पे आके सबसे पहला स्टूडेंट यहाँ पर साइलेंट हो जाता है और या फिर बोलता है कि माय पेरेंट्स आर सो एंड सो, my father's name is so and so, my mother is so, my brother, sister, siblings, and वो दुनिया की बातें करते हैं। आपने प्लीज डोंट डू दिस, बिकॉज ये आपको नेगेटिव रखने के सबसे बड़े चांस होते हैं, क्योंकि we are not hiring you, HRs are not going to hire you, they don't want to see your background, they don't want to see you, only you। उन्हें आपसे मतलब है, आपकी बैकग्राउंड से कोई भी लेना देना नहीं है।
दे नो, बिकॉज वो डिग्री भी है उनके पास, है उनके पास पड़ा हुआ है वो डिग्री का पेपर, सर्टिफिकेट. सो प्लीज टेल अबाउट योरसेल्फ. अबाउट योरसेल्फ मींस कि व्हाट आर योर ड्रीम्स, आपके अपने सपने क्या हैं, आप उनको कैसे अचीव करना चाहते हो, आपने उद्देश्य क्या बनाया अपने जीवन को लेकर के, क्या आपने सोच रखा है आफ्टर 10 और 5 years वेयर यू सी योरसेल्फ, आपको ये बताना है. और आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है उन चीजों को लेकर के, आपके उद्देश्य क्या है. इवन आपको ये भी हो सकता है कि द इंटरव्यूअर कैन आस्क यू अबाउट देयर कंपनी आल्सो, तो यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंपनी. आजकल तो गूगल और ये सारी चीजें नेट पे, यू कैन सर्फ ईच एंड एवरीथिंग बिफोर सिटिंग इन इंटरव्यू. यू मस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग कि आखिर वो कंपनी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, और आप उसमें किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. इफ यू आर गोइंग थ्रू इट, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके सिलेक्शन के चांसेस 90 to 95% तक हो जाते हैं. बिकॉज कोई भी एचआर यही जानना चाहता है कि आपको बताना है कि आप उनकी कंपनी के लिए क्या कर सकते हो फॉर दैट कंपनीज ग्रोथ. आपको इंटरव्यू टाइम पे ये बताना होता है कि आई कैन बी वेरी मच यूजफुल एंड आई कैन बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर कंपनी. सो I have the high possibilities to be selected in your company. You must be confident enough for that. अगर आप इस छोटी छोटी चीजों को अगर तैयारी करके जाते हैं, so many things are over there. इनकी तैयारी के साथ आप वहां पर जाते हैं किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने, नो वे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो. तो अभी मैंने बोला, अब मैं स्टूडेंट्स को अनम्यूट करना चाहूंगी. प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू योर इंटरव्यू. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट्स, yes, please don't be stressed or don't take tension. Please, not a single student should be in tension right now कि हमारी जॉब का क्या होगा. Please, we are here to make you assure. हम आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं, और just trust us. जॉब की कभी कभी कमी नहीं रही है, कमी रही है तो उसको ढूंढने वाले की. नहीं समझ आता स्टूडेंट्स ऐसा क्यों कहते हैं कि जॉब नहीं है या अब आने वाले टाइम में जॉब नहीं होंगी. नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ऑफर्स आपके आगे हैं, बस आपको आगे बढ़ के उनको लेना है, आपको उसके लायक बनाना है खुद को. यस प्लीज, आई वुड लाइक. यस प्लीज. एक्चुअली ये 2 मिनट के बाद सेशन ऑफ होगा, फिर सारे लोगों को एक बार दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा. तो आप प्लीज 2 मिनट तक कंटिन्यू कीजिए. 2 मिनट के बाद हम लोग दोबारा से बच्चों को लॉगिन करके देन आंसरिंग द क्वेश्चंस. Right. Okay. Hello, ma'am. Hello. Ma'am, this is Rajiv. Actually, there is one question, mostly the HR asked, like, when you have too much work on your plate, so then how will you, how do you cope up with that work? So what kind of answer we have to given them? Rajiv, actually, I think you are asking about the workload, right? Exactly. See, I think if you are going to be selected, or you are found that you are capable enough to handle that workload, or you know how to handle that, so I am pretty sure that you are selected for that point of view. And you will have to say that if you are going to be selected, you can handle it very easily. क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर हम अपना आउटपुट देते हैं आउट ऑफ बॉक्स जाकर, तो इट गिव्स यू द मार्क्स आल्सो, इट मेक्स योर फोर्टे साउंड. तो नेवर गिव अप, बी पॉजिटिव एट एवरी स्टेप. और क्योंकि कहीं ना कहीं तो कभी हल्का वर्कलोड भी रहता है, कभी कभी हैवियर भी होता है, तो बी हैप्पी विद दैट. आई थिंक नॉट अ बिग डील. Okay. Thank you. Thank you, Rajiv. Anybody else? Anybody else want to know the questions? Ma'am, what about nervousness? When we go to for an interview, then we feel lot of nervousness. Nervousness, right? Yeah. May I know your name, please? Yeah, ma'am. My name is Himanshu. Himanshu. Yeah. It's a very simple factor, और ये बहुत ही simple सी चीज़ है कि we feel nervous before taking any interview, right? तो ये nervous क्यों?
हिमांशु, मैं आपसे ही नहीं, मैं हर स्टूडेंट से कहना चाहूंगी, स्टूडेंट से भी नहीं, टू एवरीवन, ये मेरा जनरल सा सजेशन है कि पहली बात तो वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ। ओके, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कॉन्फिडेंट इनफ कि